न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। चर्चा की आज शुरुआत करें। आज बहुत कुछ है इस पिटारे में, लेकिन उससे पहले इस वक्त संसद में बजट पर जो बजट सत्र की शुरुआत में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे चलते हैं संसद और वहां सुनते हैं क्या कुछ वहां से राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ रही है। यह सुन लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं राहुल गांधी को। And it demonstrates a complete lack of understanding of history. Please, this evening, go back and look at all the empires that have ever ruled India. Look at them carefully. You will find that every single one of them is a union of states. There's not a single empire. There was a reason Ashok used to go and put his pillars everywhere. Because it was a union of states where Ashok, the great king, respected everybody. You are disrespecting everybody. Disrespect me, I don't care. It doesn't matter to me. But you cannot disrespect the people of this country. Right. Now final. And I think one of the more important parts of my speech. Actually, I want to say one other thing, which I demand an apology from the Home Minister. And this represents again the idea of a union of states versus the idea of a king. Now, a few days ago, some political leader, I'm not going to name, came to me from Manipur. And he was very agitated. I spoke to him, I said, why are you agitated, my brother? And he says, Rahulji, I have never felt as insulted as I have a few days ago. I said, why? He said, Rahulji, a delegation of Manipuris, political leaders, senior leaders went to see the Home Minister. Outside his house, we were told to take off our shoes. And when we went inside his room, we found that the Home Minister was wearing his chappals. What does this mean? What exactly does this mean? Why is it that in the Home Minister's house, the Home Minister can wear chappals, but a delegation of Manipuri politicians cannot? What does this mean? Why? No, it reflects. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। आपको फोटो दिखा दूंगा स्पीकर सर, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। मैंने उस व्यक्ति से बोला आप गलत बोल रहे हो। उसने कहा राहुल जी मैं आपको फोटो देता हूं, और फोटो दी उसने मुझे। दिस इज नॉट द वे टू डील विद द पीपल ऑफ इंडिया। Anyway, now let me come to my final and I think most important point. Go ahead. We are sitting. संस्कृति ये होती है कि वो भी जूते उतारे और आप भी। संस्कृति ये नहीं होती कि वो जूते उतारे आप नहीं। ये पता नहीं कौन सी संस्कृति आपकी। Anyway, let me finish. Very, very ridiculous argument against the Honorable Home Minister. It's not. And it has touched the religious sensibility. You have touched the religious sensibility of all our people. You will decide. हमारी धार्मिक परंपराओं पर ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं क्या? Speaker sir, ये भारत के धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं, भारत की धार्मिक परंपराओं पर अटैक कर रहे हैं, और ये हम सबकी धार्मिक परंपराओं के ऊपर आघात है। हमारे घर में भी यही है। Speaker sir, it reflects a mentality. It reflects a sense that I am bigger than you. You are nobody, I am everybody. That is why I will wear my shoes and you will not.
Anyway, going back to the main point. Now, and the final most important point. My understanding is that the RSS and the BJP is playing with the foundations of our country. And they are weakening the foundations of our country. They are weakening the links between our people. They are weakening the links between our languages. Now, they have further weakened the country. They have further weakened the country by ensuring that not a single Indian youngster can get a job. So today, unlike a decade ago, 15 years ago, India is weak. Ask yourselves, why you were not able to get a guest on Republic Day. Ask yourself that question. Don't look surprised. Ask yourself that question. What is happening is that India today is completely isolated. We are completely isolated and surrounded. We are surrounded in Sri Lanka, Nepal, Burma, Pakistan, Afghanistan, China, everywhere we are surrounded. And our opponents understand our position. Please let me speak, because I'm saying something very serious, right? I'm saying something very serious. Let me say, we have been weakened. The conversation between our people is not taking place. Our institutions are under attack, and we are completely surrounded. The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists, so let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. तो दोस्तों, यह इस वक्त राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, या आप अभी सुन रहे थे। बहुत अभी लंबा भाषण शायद चले, लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें और खासकर न्यूज पॉइंट में दिन भर के घटनाक्रम। और अभी कुछ देर पहले ही राहुल गांधी की बारी आई। आज 4:30 बजे से संसद लगनी थी लोकसभा, और लोकसभा में अभी भाषण दे रहे हैं और खासकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं।
राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं इस पर तो हम चर्चा करेंगे, आगे भी करेंगे, जारी रखेंगे चर्चा को। लेकिन उससे पहले जो बातें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं उसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये जानने समझने के लिए आइए एक बाइट देखते हैं सबसे पहले जयंत चौधरी की। आइए देखते हैं जरा। वर्ग है कि वो ये महसूस करे कि हाँ हमारी सरकार। आज इनकी जुबान पे मेरे लिए इतनी मीठी मीठी बातें। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया, योगेश आजा तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। और मैं कह रहा हूं मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा, मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। जनता के लिए क्या करोगे? वो 700 किसानों परिवारों के लिए क्या किया? टेनी जी मंत्री क्यों बने बैठे? रोज जो है सुबह उठते हैं और नफरत बोलने का काम शुरू कर देते हैं और कोई काम नहीं है। तो ये जयंत चौधरी को आप सुन रहे थे। हेमा मालिनी मुझे नहीं बनना है, और खासकर टेनी अभी तक मंत्री क्यों बने हुए हैं, किसानों की बात रख रहे हैं और अपनी बातें और खासकर योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को क्यों घेर रहे हैं जयंत चौधरी, आइए जरा योगी आदित्यनाथ को ही सुनते हैं। अलग अलग बाइट लगातार आप सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, आज सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उनको लगता चुनाव के दौरान सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग के पास सारा प्रशासन होता है। तो उनके वे गुंडे फिर से बिल बिलाने गए, अपने बिलों से निकल करके फिर रेंगने लगे। मैंने कहा घबराओ मत, रेंग के कितने चल पाओगे? 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। तो डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। देखो आप अंतर समझ सकते हैं, वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। और हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर, और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रहा, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो,
10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। तो सुन रहे हैं आप सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी जो है वो शांत करवा देंगे, यानी कि गर्मी शांत करवाने की घुड़की दे रहे हैं सीएम योगी। कयामत के दिन का जिक्र भी कर रहे हैं और बहुत कुछ तो आपने सुन ही लिया है, खासकर कल भी आपको हमने सुनाया था। तो सीएम योगी, कुल मिलाकर के योगी जी की भाषा से यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी अब किसी भी तरह सत्ता हासिल करने के लिए बेचैन हो रही है और इसमें उसे न शब्दों की मर्यादा दिख रही है और न ही राजनीतिक शिष्टाचार याद आ रहा है। विरोधियों को दुश्मन की तरह पेश करने का ये दांव क्या बीजेपी को जीत दिलाएगा या फिर पैवेलियन में वापसी करवाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। इधर समाजवादी पार्टी और रालोद मिलकर के बीजेपी को सर्दी, गर्मी, चर्बी सबके लिए नए मायने समझा रहे हैं। आइए एक बार फिर से जयंत चौधरी की एक दूसरी बाइट सुनाते हैं। सर्दी, गर्मी और चर्बी की बात कैसे कर रहे हैं जयंत चौधरी, आइए उसे भी सुन लेते हैं। फिर गए वो मुजफ्फरनगर कह रहा ना, और कहा ये जो गर्मी आ रही है ना, मैं जानता हूं मई जून में शिमला पहुंचा दूं। गर्म तो हमारी भाषा है, गर्म हम तो पहले ही गर्म हुए। ये जैकेट तो मैं ऐसे ही पहन रहा हूं, चौधरी अजीत सिंह तो शॉल भी नहीं ओढ़ते थे, उन्हें ठंड नहीं लगती थी बिल्कुल। तो गर्म मिजाज के तो है ही, क्या इलाज कर लोगे योगी जी? मुझे तो लगता है आपको सर्दी लग गई सर पे, यहीं से ठंड घुसती है ना। आप योगी जी, मैं आपका बुरा नहीं चाहता, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कंबल ओढ़ लो, सर्दी हो रही, कंबल ओढ़ के गोरखपुर जाके लौट लो, यहाँ पर काम। तो योगी जी कंबल ओढ़ लो, गोरखपुर जाकर लौट जाओ, ये कह रहे हैं, या लौट जाओ गोरखपुर, ये कह रहे हैं जयंत चौधरी। और सर्दी कहां से लगती है ये बता रहे हैं। तो सर्दी गर्मी बहुत है उत्तर प्रदेश में। वैसे सत्तारूढ़ दल बीजेपी और अपने प्रतियोगियों खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए आज मायावती भी मैदान में उतरी हैं। मायावती ने बीजेपी को जातिवादी और पूंजीवादी पार्टी बताया है। समाजवादी पार्टी पर मायावती ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दलित और अति पिछड़ों को कुछ नहीं मिला और प्रमोशन में आरक्षण बिल को समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया था। और कांग्रेस के लिए कहा है मायावती ने कि अपनी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सिर्फ केंद्र की सत्ता में ही बेदखल नहीं हुई, बल्कि यूपी से भी बहुत पहले बाहर हो गई है। वो लोग यानी कांग्रेस दलितों और पिछड़ों के खिलाफ हैं। जब वो सरकार में थे तब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, वो भी तब जबकि वो इसके लायक थे। तो इस तरह आज मायावती ने भी रैली में अपना दम दिखा ही दिया है और उन लोगों को जवाब दे दिया है जो उन्हें ठंड का नाम लेकर चिढ़ा रहे थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि 30 दिसंबर जो बीता है, 30 दिसंबर को अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि बहन जी को तो ठंड ही नहीं उतर रही है, चुनाव आ गया है और वो चुनाव प्रचार के लिए भी निकल नहीं रही हैं। लगता है वो पहले ही हार से भयभीत हो गई हैं। आइए जरा सुन लेते हैं अमित शाह को। मित्रों, विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी, चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन, मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है मित्रों। तो सुना आपने, ये अमित शाह थे। हालांकि इस पर मायावती ने जवाब दे दिया था उसी वक्त। 30 दिसंबर की बात है कि सत्ता के लोगों को ठंड में जो गर्मी चढ़ी है वो सरकार के और गरीबों के खजाने की गर्मी है। तो गर्मी और सर्दी की ये सियासत अब चर्बी उतरने और खून की गर्मी तक जा पहुंची है। और इन सब से इतर यूपी चुनाव में
पहले से उलझी बीजेपी यूपी टाइप सियासत में भी उलझ गई है। दरअसल कल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था और इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, युवा, गरीब, किसान और उद्योगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर बजट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट को लेकर के अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल किया तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले कहा कि राहुल गांधी को बजट समझ नहीं आया होगा। फिर निर्मला सीतारमण ने खुद मोर्चा संभाला और कहा कि मैं समझती हूं कि इन्होंने टिपिकल यूपी टाइप जवाब दिया है, जो यूपी से भागने वाले सांसद के लिए काफी है। आइए जरा निर्मला सीतारमण की ये जुबानी जो है, ये कहानी जो उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं, ये बाइट उनकी जुबानी सुन लेते हैं। आइए जरा सुनते हैं कि जो आपका जो आज बजट है वो डायरेक्शनलेस है और इसमें सिर्फ भविष्य की बात की गई है, तात्कालिक राहत के लिए कुछ नहीं है। और राहुल गांधी ने तो इसे कह दिया जीरो सम बजट का है। उन्होंने कहा है कि इसमें सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास, गरीब, युवा, किसान, एमएसएमई के लिए कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष को और खासतौर राहुल गांधी को आपका ये बजट समझ में नहीं आया या फिर उन्होंने राजनीति के चलते ऐसा कह रहे हैं वो लोग? जो बाद में आपने कहा कि राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा, यही बात सही है, क्योंकि इस बजट में सारी चीजों की सारी व्यवस्था की गई है। अभी मैडम सारी चीज का आंसर दे भी रही हैं। हर सेक्टर के लिए दूरगामी बजट है ये, निश्चित तौर से इससे देश को और भविष्य में फायदा होगा। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. Yeah, no, that's not right. I wish as a leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. तो बजट के बहाने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी की समझ और काबिलियत पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश बूमरैंग साबित हो गई है। टिपिकल यूपी टाइप कहने पर अब केवल निर्मला सीतारमण ही नहीं बल्कि उनकी पूरी की पूरी पार्टी यानी बीजेपी भी घिर चुकी है और पहले फेज की वोटिंग से पहले यह घेराव बीजेपी के लिए महंगा साबित हो सकता है। सोशल मीडिया पर यूपी टाइप को अब यूपी की अस्मिता का सवाल बना दिया गया है। लोग गिना रहे हैं कि यूपी का इतिहास और परंपराएं क्या हैं। कांग्रेस ने तो इस मुद्दे पर यूपी के अपमान की बात कही है और समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि यूपी का सबसे बड़ा अपमान है, इसीलिए इस बयान पर वित्त मंत्री को ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए। अब तक किसानों, छात्रों और महिलाओं के विरोध में फंसी हुई बीजेपी को अब इस बयान ने बुरी तरह से फंसा दिया है। तो आज न्यूज पॉइंट में दोस्तों सर्दी गर्मी की यूपी टाइप सियासत पर चर्चा करेंगे और साथ में अखिलेश जयंत के भाईचारे में कैसे फंस गई है बीजेपी यह भी समझेंगे। और अभी इस चर्चा की जब शुरुआत हम कर रहे थे और जहां हमने आपको दिखाया कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं संसद में, उस पर भी बात करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करें और हमारे साथ इस वक्त 5 हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। बहुत इंतजार करवाया, आप सबसे माफी चाहता हूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल रॉयल जी, सीधे मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं, चीफ एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल रॉयल जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, आपका स्वागत। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी। जयशंकर जी, आपका स्वागत। और हमारे साथी हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और स्वागत है आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका। चूंकि अचानक राहुल गांधी का भाषण आ रहा था तो भाषण भी आप लोगों के सामने हम पेश करना चाह रहे थे, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लाइव आपको दिखा रहे थे संसद भवन से राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की चर्चा से ही शुरुआत करना चाहूंगा इस न्यूज पॉइंट की। और सबसे पहले दीपक पाचपोर जी, आपके पास आना चाहूंगा कि राहुल गांधी क्या सवाल जो उन्होंने पूछा, आज भी सवाल पूछ रहे हैं संसद में। अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग देख रहे थे, कल भी उन्होंने सवाल पूछा था कि इस बजट में गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या है, तो उस पर यूपी टाइप जवाब दिया वित्त मंत्री ने और उनके मातहत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने, पंकज चौधरी ने। क्या कहेंगे इस पे, यूपी टाइप पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनका सवाल बहुत रिलेवेंट था
और यूपी में जिस हिसाब से बेरोजगारी और गरीबी है, तो स्वाभाविक है कि ये सवाल तो कोई भी पूछेगा। लेकिन मैं इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं, जिसकी ओर राहुल गांधी ने भी थोड़ा इशारा जरूर किया है, उसको थोड़ा सा मैं एलोबोरेट करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सीतारमण का ये जो बयान है, ये मुख्यतः इसके 3 तत्व हैं, 3 चीजों से निकला हुआ ये जवाब है। पहली तो है ये उनको उत्तर प्रदेश का जो योगदान है हमारे देश में, उससे पूरी तरह ऐसा लगता है कि वो अनभिज्ञ है। दूसरा लगता है बड़ी गहन घृणा जो है उनके अंदर कुछ लोगों के प्रति और कुछ प्रदेश के प्रति, ये दूसरी घृणा का तत्व बड़ा भीषण है उनके अंदर, और कृतज्ञता तो है ही। मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट करूंगा, मुझे थोड़ा सा समय देंगे राजीव जी। पहली बात, आज की जो अराजकता परी जो भाषा है और आज जो हमारे कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र जो है जिस तरीके के राजनीतिक अराजकता से घिरे हैं, उससे हमको ऐसा आभास लगता है, या जिन्होंने बहुत ज्यादा हमारे इतिहास को नहीं जाना है, सीतारमण जैसे लोगों ने शायद, वे नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश का योगदान ऐसा अलौकिक है। यहाँ पर आप लोग लगभग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग, आप ये बात कहने में आपको संकोच हो सकता है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से बाहर का हूं, महाराष्ट्रीयन हूं, तो मैं इन चीजों को बड़े गौर से देखता हूं, तो बड़ा चमत्कृत होता हूं कि कैसे एक प्रदेश जो है पूरे देश का आधुनिक भारत का निर्माता है। अगर हम इसको शुरुआत करें तो 1857 से अगर हम शुरू करें तो उसको तो चाहे उसकी चिंगारी कहीं भी हुई हो, लेकिन मेरठ से जो निकली है लपट स्वतंत्रता आंदोलन की, सबसे ज्यादा जो योगदान और सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां हुई वो हमारे उत्तर प्रदेश की ही है। दूसरा आप देखिए कि हमारे सामाजिक सुधारों के 2 केंद्र थे मुख्य रूप से, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, लेकिन पुनर्जागरण काल की अगर शुरुआत हुई साहित्य और पत्रकारिता के जरिए हुई है, तो उसका केंद्र भी हमेशा उत्तर प्रदेश रहा है। मुख्य रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अगर हम याद करें और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को याद करें, तो बौद्धिक जो पुनर्जागरण है ये लाने वाला जो है हमारा उत्तर प्रदेश ही था, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, पत्रकारिता हो। उसके बाद एक बड़ी घटना है जिसने इस पूरे भारत को बदल कर रख दिया, उसका केंद्र आप गांधी है। गांधी जब वहां से लौटे साउथ अफ्रीका से महात्मा बनकर, तब तक भी वो भारत से वैसे अपरिचित थे। तो जब उन्हें गोखले जी ने कहा आप जाइए पहले 2 साल घूमिए फिरिए देखिए उसके बाद, तो मुझे याद है कि 4 फरवरी 1916 वो तारीख थी जब PHU में पहला भाषण हुआ लंबे समय के बाद महात्मा गांधी का, जिन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी राजा महाराजाओं को और यहां तक कि वायसराय को। गांधी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन की धुरी संभाली, जो नेतृत्व किया, वह नेता हमको अगर कहीं से मिला है तो उसी वाराणसी से मिला है। बाकी और उससे बहुत सारे और कहानियां हैं जो है दिलचस्प। अब आइए कि ये इन तमाम चीजों से मुझे लगता है कि पूरी तरीके से सीतारमण जो है वो अनभिज्ञ हैं, उन्हें नहीं पता घृणा क्यों है। आज भी देखिए इस बुरी कदर में जब पूरे भारत को 2 तहजीबों में 2 संप्रदायों में बांटने की कोशिश की जा रही है, तो भी उस गंगा जमुनी तहजीब को अगर किसी ने संभाल कर रखा है, तो आप ये देखिए उत्तर प्रदेश है। अल्पसंख्यक जो है बड़े प्रताड़ित है, लेकिन उन्होंने संयम और धैर्य नहीं खोया है। उस तमाम प्रताड़ना के इतने केस आ रहे हैं बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पे, लेकिन उस गंगा जमुनी तहजीब को अगर किसी ने संभाल के रखा है, तो मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश ही है आज भी। और एक शायद घृणा का एक और कारण सीतारमण का उत्तर प्रदेश के प्रति यह हो सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ी देर उत्तर प्रदेश थी, वो है जवाहर, यानी मेरा इशारा जवाहरलाल नेहरू की ओर है। तो ये अंतर मन में जो सीतारमण के जो तमाम तरह की घृणा भरी हुई है, वो हिंदी भाषियों को बड़ी वो हे दृष्टि से देखते हैं। और दक्षिण भारत में आप जाइए तो आज भी हिंदी के प्रति बड़ी नफरत का भाव है, और ये तो मदुरई की ही है। तो तमिलनाडु जो है आज भी हिंदी के जो खिलाफ सबसे ज्यादा भावना रखने वाले प्रदेशों में आज भी वही बचा हुआ है, बाकी जगह तो धीरे धीरे कम हो रही है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि कृतज्ञ क्यों है, देखिए भाई आपके दीनदयाल जी आपके उत्तर प्रदेश के थे, आज आपका जो कुछ गेन है, आज भारतीय जनता पार्टी जहां पर आकर खड़ी हुई है, जितनी बड़ी मजबूत हुई है, जो उसको विस्तार हुआ है, वो देने वाला तो उत्तर प्रदेश ही है। जो राम मंदिर अगर नहीं का आंदोलन नहीं होता तो उत्तर प्रदेश की बातें कौन करता, और सीतारमण आज शायद वित्त मंत्री भी नहीं रहती। तो ये कृतज्ञता देखिए कि उसी उत्तर प्रदेश को आज वो गरिया रही है। जो महाराष्ट्र में मुझे काफी समय रहने का मौका मिला तो मैं देखता था वहां भी उत्तर भारतीयों को लेकर एक बड़ी जो हे दृष्टि थे, बिहारियों को लेकर बड़ी हे दृष्टि थे, जबकि मैं वहां पर उनकी मेहनत देखकर चमत्कृत रह जाता था कि कैसे 3 बजे से लेकर रात को 12-12, 1-1 बजे तक उन लोग काम करते हैं। तो कुल जमा यह है कि इन 3 चीजों के कारण मुझे लगता है कि माफी क्या मांगनी चाहिए, सीधे सीधे इस बात को लेकर
सीतारमण को तो इस्तीफा ही देना चाहिए, और नहीं तो राष्ट्रपति को चाहिए कि उनको निकाल बाहर करे, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वर्सेस ऑल किया जा रहा है। अभी नेहा सिंह राठौर इस समय बड़ी चर्चा में है, जिन्होंने एक गाना गाया है यूपी में काबा। उनके जवाब में कोई ललित सिंह राजपूत है जिन्होंने एक वीडियो दिया है कि आप पूछते हैं कि उत्तर में काबा, उत्तर में राम बा, उत्तर में श्याम बा, उत्तर में गंगा बा। अरे भाई, जब उत्तर प्रदेश में इतना कुछ है तो सीतारमण की यह हिम्मत कैसे हो रही है कि वो उत्तर प्रदेश के लोगों को इस तरीके से गरियाए? मुझे लगता है कि उनको तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर निकाल देना चाहिए। राजीव जी, थोड़ा लंबा मैंने समय लिया, बहुत सारी बातें बहुत कड़क अंदाज में आप निर्मला सीतारमण के लिए बोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी बातें जो आप रख रहे हैं यहाँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे हैं, और वो भी जरूरी भी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जाने कि उत्तर प्रदेश में सचमुच काबा यानी कि उत्तर प्रदेश क्या है और वहां क्या उत्तर प्रदेश में है क्या, यही समझने की कोशिश। केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट में अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो इस वक्त हॉट केक बना हुआ है। लेकिन किसके लिए हॉट केक? ये केक खाएगा कौन? क्या अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी, या बाबा जो है यानी योगी आदित्यनाथ वो यहां पर ले जाएंगे यहां की सीटें? इसलिए क्योंकि 136 सीट और 136 में से 109 सीटों पर जीत हासिल की थी पिछली बार बीजेपी ने, यानी 2017 में। लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार तो बिल्कुल मामला पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां की जनता कह रही है। और एपी सेंटर में बैठे हुए हैं हमारे साथी अनिल रॉयल जी, जो और भी अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या कुछ है। और अभी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे थे तो जयंत चौधरी की कुछ बाइट्स हमने सुनाई। आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव थे शामली में। शामली जो जिला है वहां पर 3 सीटें हैं और उनमें से मुख्यालय जो है वो शामली है, और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो सर्दी गर्मी चर्बी की जो बात हो रही है अनिल जी, ये सर्दी गर्मी चर्बी लोगों के जेहन में यानी कि दिलो दिमाग पर वोट के लिए किसकी तरफ प्रेरित करते हुए दिखाई दे रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो बार बार अपनी बातें कानून व्यवस्था की बात करने के साथ साथ बात यही रख रहे हैं कि हम अभी तक हमने ये किया है जो 2017 से पहले नहीं था, और आएंगे 10 मार्च को तो उसके बाद यहां जिनको गर्मी लग रही है उनको ठंडा कर देंगे, यानी कि उनको शिमला बना देंगे। क्या कह रहे हैं लोग? राजीव जी, सबसे पहले तो दीपक जी का हार्दिक आभार। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते मैं तहे दिल से दीपक भाई का आभार व्यक्त करता हूं कि सीतारमण जी के बयान पर इन्होंने मजबूती से उत्तर प्रदेश का पक्ष रखा। सीतारमण को गलतफहमी हो कि उत्तर प्रदेश इतना कमजोर समान है, आज जिन आका के नेतृत्व में वो वित्त मंत्री है उनको भी प्रधानमंत्री बनाने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। हमें उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते गर्व है। हम 1857 की क्रांति से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक के क्षेत्र के हैं। चंद्रशेखर आजाद भी हमारे थे और मेरठ की क्रांति भी हमारी थी। प्रधानमंत्री जी को भी हमने ही इस अवसर पे भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्थिति में है ये उत्तर प्रदेश की महान जनता की वजह से है। और उत्तर प्रदेश के राम मंदिर का भी उन्होंने उल्लेख किया है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे अन्य स्थान पे हो, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए वो उपजाऊ भूमि रही है जिसने 2 से लेकर 325 तक पार्टी को पहुंचाने का काम किया है। सीतारमण जी का बयान निश्चित रूप से निंदनीय है और उत्तर प्रदेश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते वित्त मंत्री के इस बयान की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व इस पर गंभीरता से बात करे और सीतारमण जी को कम से कम इससे उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। हमें हे दृष्टि से ना माने, हम मजदूर हैं लेकिन स्वाभिमानी हैं। हम हमारी स्वाभिमान को चुनौती देने की कोशिश ना करें। हम बनाना भी जानते हैं, यदि बिगड़ गए तो बिगाड़ना भी जानते हैं, ध्वस्त करना भी जानते हैं। हम निर्माण, सृजन और विध्वंस सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश उस धरा का नाम है। इसलिए मैं इस बयान की सीतारमण जी की निंदा करता हूं। दूसरा बयान आपने उत्तर प्रदेश का महाराज जी का बताया और जैन जी का बताया। दोनों के बयान बहुत अच्छे नहीं हैं। राजनीति में एक मर्यादा, एक शुचिता होनी चाहिए। महाराज जी ने कहा कि गर्मी उतार देंगे। महाराज जी बार बार कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को टिकट दिया है। मेरे जिले में 6 सीटें हैं राजीव जी, उनमें से एक भी व्यक्ति अपराधी नहीं है।
और अपराधियों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उन पे पॉलिटिकल मुकदमे, लेकिन 7 मुकदमे भाजपा के कपिल देव जी पर है, जबकि मेरे यहां उनके सामने, कपिल जी के सामने सौरभ जी, उस पर कोई अपराध नहीं है। पंकज मलिक के खिलाफ कोई ऐसा अपराध नहीं है। यहां जो अन्य प्रत्याशी चंदन चौहान हो, राजपाल सैनी हो, राजपाल बालियान हो या अनिल कुमार, ये 6 प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, इनमें किसी की भी पृष्ठभूमि अपराधी की नहीं है। महाराज जी मुजफ्फरनगर को रोज डिफेम करते हैं पूरे प्रदेश में घूम घूम के। मुजफ्फरनगर की भूमि ना अपराधी को पसंद करती है, ना अपराधी को राजनीतिक रूप से प्रश्रय देती है। उन्होंने जो बार बार कह रहे हैं कि ठंडा कर देंगे, बहुत विनम्रता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, संत हैं और संत का हम सम्मान करते हैं। महाराज जी को अपनी उस वेशभूषा का सम्मान करना चाहिए जो वो धारण करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग एक संत के रूप में उनका आदर करते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो परसेप्शन है उसको उत्तर प्रदेश का आम आदमी पसंद कर रहा है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ राजीव भाई एंटी इनकम्बेंसी घनघोर है, लेकिन उसके बाद भी एक परसेप्शन बना हुआ है कि योगी जी के राज में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर रही है, जो उस एंटी इनकम्बेंसी को कवर कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसी के नाते मुकाबले में आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी में योगी जी का परसेप्शन हटा दीजिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ इतना बड़ा माहौल है कि अगर 47 सीट वाला स्थिति परिवर्तित हो जाए, लेकिन महाराज जी ने जो परसेप्शन बनाया है यह निश्चित रूप से पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम है और ये विपक्ष को कड़ी चुनौती दे रहा है। इस गठबंधन की जहां तक बात है, जैन जी ने जो कहा कि चर्बी उतार देंगे, जैन जी को भी यह बात नहीं कहनी चाहिए, प्रक्रिया की प्रतिक्रिया है, उनको भी यह बात नहीं कहनी चाहिए। मुख्यमंत्री है, एक संत है, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। महाराज जी को भी इस मुजफ्फरनगर की पृष्ठभूमि को याद करना चाहिए। महेंद्र सिंह टिकैत यहाँ किसानों के एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने सिसोली में देश के कई प्रधानमंत्रियों ने वहां हाजिरी लगाई, मुख्यमंत्रियों ने हाजिरी लगाई और मायावती जी का शासन था। सिसोली से टिकैत साहब को 72 घंटे बाद गिरफ्तार नहीं कर पाई, आखिर में फैसला करना पड़ा। राकेश टिकैत 13 महीने तक थे महाराज जी के राज में ही थे। महाराज जी ने उन्हें घोषणा की थी बक्कल उधार देंगे, वो लखनऊ में बार बार गए, महाराज जी बक्कल नहीं उधार पाए। बयान नहीं देना चाहिए। राकेश टिकैत 13 महीने तक गाजीपुर बॉर्डर में थे। गाजीपुर बॉर्डर को इंग्लैंड का नहीं था, उत्तर प्रदेश का था, और उन्होंने भी लगातार आंदोलन चलाया। तो महाराज जी को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, राजनीति में एक सम्मान, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव जरूर होना चाहिए। राजनीति को इतने घटिया स्तर पर न ले जाएं कि जो बहुत छोटे छोटे चिरकुटों की तरह व्यवहार किया जाए। राजनीति में महाराज जी का भी सम्मान होना चाहिए, जैन जी का भी सम्मान होना चाहिए, अखिलेश जी का भी सम्मान होना चाहिए, मायावती जी का भी सम्मान होना चाहिए। वैचारिक मतभेद होने चाहिए, विकास पर निर्णय होना चाहिए, पार्टी की नीतियों पर निर्णय होना चाहिए, लेकिन चरित्र हनन करके और इस तरह की टपोरी भाषा का इस्तेमाल करके राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में शायद सभी को खराब लगता होगा। आप अपनी पार्टी की अच्छाई बताइए, विपक्ष की बुराई बताइए, लेकिन मैं ठंडा कर दूंगा, गर्म कर दूंगा, ईश्वर के अलावा इस सृष्टि में किसी को अधिकार नहीं है। अब लोग कहते थे मकर संक्रांति के बाद मौसम में गर्मी आ जाती है, लेकिन मैं नगर में हूं, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। महाराज जी, इसका अधिकार केवल और केवल ईश्वर को है कि कब मौसम में ठंडा आएगा, कब गर्मी आएगी। अब तो राम जी जाने कब मौसम किसका ठंडा हो जाए। राजनीतिक मौसम भी ठंडा गर्म करना ईश्वर के अधीन है। गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। रही अपराधियों के बाद, मुख्तार अपराधी है, अतीक अपराधी है, मान लिया, लेकिन ब्रजेश, धनंजय सिंह, राजा भैया, ये सब देव पुरुष हैं क्या? सेलेक्टेड अपराधी नहीं। अपराधी अपराधी, अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म, कुछ नहीं होता। अपराधी के साथ सख्ती का व्यवहार होना चाहिए। बुलडोजर चले या कुछ चले, उसके खिलाफ पर वो में समानता होनी चाहिए। सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए। केवल मुसलमान को अपराधी मानकर अपराध उसके खिलाफ कार्रवाई हो और हिंदू अपराधी हो उसको अपराधी ना माना जाए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। राजा को सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, करने के साथ दिखना भी चाहिए। यही अपेक्षा महाराज जी से की जानी चाहिए। बहुत सारी बातें, सम्मान की बात है, सम्मान
होना चाहिए। यानी राजनीति में सब अपने अपने हिसाब से, लेकिन यहां चाहे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भाषा सुनिए, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा सुनिए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की भाषा सुनिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा सुनिए, माफ कीजिए ये तमाम लोग जो हैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और आज ये लोग शासन कर रहे हैं इस देश में, राज्य में। और इसके अलावा दूसरी तरफ चाहे जयंत जी अनिल जी कुछ मेरा कहना रही है राजीव जी कि मेरे जिले को इतना बदनाम ना करें। मेरे जिले में किसी पार्टी का कोई अपराधी नहीं है, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, कोई अपराधी नहीं है 6 की 6 सीट पर। कृपया अनुरोध सभी राजनेताओं से मेरे जिले को बदनाम ना करें। यहाँ कोई अपराधी नहीं, कोई गुंडा नहीं, किसी माफिया को यहाँ किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पार्टियों को कम से कम मेरे जिले को बदनाम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। जो बाद में जुड़े हैं मैं बता दूं, अनिल रॉयल जी मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। रॉयल बुलेटिन जो अखबार है उसके चीफ एडिटर हैं और बहुत नजदीक से उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, जानते हैं और क्या कुछ हो रहा है वही अपने विचार यहां रख रहे हैं। भाषा की मर्यादा और उसमें कौन कहां कहां पहुंच रहा है इसकी बात हम कर रहे हैं। और साथ साथ शुरुआत जो कल से, हालांकि शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, 30 दिसंबर की एक बाइट हमने आप लोगों को सुनाई, और सुनाना है तो बहुत कुछ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दीदी ओ दीदी का नारा जो था, वहां से लेकर के पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, माफ करें, पश्चिम बंगाल से लेकर के यहां तक क्या क्या नहीं हुआ है ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहूंगा सीधा। और अब ये जो भाषा जो हम लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इस भाषा में जिस प्रकार की बातें आ रही हैं सामने, इस मर्यादा को और कहां तक तार तार होते हुए देख रहे हैं आप? जी राजीव जी, भाषा तो देखिए, मतलब जैसा आपने पश्चिम बंगाल की बात की, तो भाषा तो इनकी गैर मर्यादित है ही, और उस पर बात भी हो गई है। और जो तमाम सारी योगी आदित्यनाथ की बाइट आपने सुनवाई है, उसमें एक पाकिस्तान वाला रह गया। वो पाकिस्तान का नाम भी उतनी बार लेते जितना इमरान खान भी नहीं लेता होगा। एनीवे, देखिए भाषा के अलावा आप उनके भाषण में कंटेंट आप देखिए क्या है। आप पिछले उनके 5.5 साल के भाषण देख लीजिए, 5 साल के भाषण, 4.5 साल के, उनके भाषण में कंटेंट ही नहीं होता है। उनके भाषण में यही होता है, एक बहुत ही मतलब जिसको कहें कि एक स्थानीय नेता भी इस तरह की गलीज भाषा नहीं बोलता है कि ठोक देंगे, मार देंगे, गिरा देंगे। मतलब ये धमकियां इस तरीके का, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा देता है? आप संवैधानिक पद पे हैं। मैं उनके जो कपड़ा पहनते हैं उस पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो उस पे भी वो कह ही चुके हैं कि मैं ठाकुर हूं। इस बात को तो वो कैमरे के सामने मान चुके ना कि मुझे गर्व है अपने ठाकुर होने पर। तो वो कपड़ा जो उन्होंने पहना हुआ उसका कोई मतलब नहीं रह जाता उसके बाद। दूसरी बात की देखिए, कंटेंट क्यों नहीं है, कोई काम क्यों नहीं गिना पा रहे हैं पिछले 4.5 साल का? एक भी काम किसानों के लिए किया हो, कोरोना में किया हो, शिक्षा के लिए किया हो, महिलाओं के लिए किया हो, बच्चों के लिए किया हो, विकास के कोई काम किए हो, एक भी काम वो नहीं गिनाते हैं। दूसरे की जो कह रहे हैं 10 तारीख के बाद मैं देख लूंगा, 10 तारीख के बाद कौन देख लेगा? योगी जी को मालूम है कि वो रहेंगे 10 तारीख के बाद मुख्यमंत्री। मान लीजिए कि बीजेपी जीत जाए तो भी क्या वो रहेंगे? किसी बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता ने कहा इस बात को कि योगी मुख्यमंत्री रहेंगे 10 तारीख के बाद? कोई उनको सीएम कैंडिडेट बना है? उनकी बाइट को ही दोबारा भी सुनिए आप, तो वो खुद भी अपने आप को नहीं कह रहे भाजपा की सरकार आएगी। तो योगी साहब को तो खुद नहीं पता है कि वो 10 तारीख के बाद मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। कोई भी जीते चुनाव, बीजेपी जीते या विपक्ष जीते, इस बात की चर्चा तो बीजेपी के अंदर भी है कि योगी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। दूसरे की जो राहुल गांधी की बात हम लोगों ने शुरू में देखी और जो उस पे रिएक्शन भी देखा निर्मला सीतारमण का,
उनके बजट के क्रिटिसिज्म को लेकर। उस पर हमारे दो साथी बहुत बात कर चुके, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यूपी टाइप जो है वो उसका जवाब 10 तारीख को यूपी दे देगा, उसमें हम लोग क्या कहेंगे। यूपी टाइप तो तमाम लोग हुए, तुलसीदास हुए जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, वो भी यूपी टाइप ही थे। कौन नहीं था यूपी टाइप? यूपी में कौन कौन नहीं हुआ है? अभी दीपक जी चर्चा कर रहे थे, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की मुलाकात भी लखनऊ अधिवेशन के दौरान चारबाग स्टेशन में ही हुई थी पहली बार, और वहीं से आजादी की लड़ाई का स्वरूप जो है वो निकल कर आया था। एनीवे, बजट कल आया। पहली बात तो ये, इस पे मैं एक सेकंड के लिए बात कर लूं कि जो निर्मला सीतारमण ने कहा और जो राहुल गांधी बात कर रहे थे, देखिए राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है जिसपे बहुत शोर मच गया वहां पे, और ये एक मानसिकता दर्शाता है, और ये पूरे भारत में ये मानसिकता है। और कम से कम पब्लिक फिगर्स जो लोग हैं, जो सार्वजनिक पदों पर हैं, संवैधानिक पदों पे हैं, कम से कम वो तो इस परिपाटी का पालन ना करें और एक उदाहरण पेश करें। मैंने कई बार, राहुल गांधी ने पॉइंट आउट किया है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि अमित शाह से मिलने कोई जाता है उनके घर पे तो वो खुद जूते चप्पल पहने अपने घर में बैठे रहते हैं और मेहमानों के चप्पलें उतरवाते हैं। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के मैंने जूते उतरे हुए देखे हैं उनके घर पे, तस्वीरें मैं शेयर कर सकता हूं। तो मणिपुर के लोगों के जूते चप्पल उतरवाए उन्होंने और खुद चप्पल पहने हुए। ये एक बहुत ही फ्यूडल, एक सामंतवादी जो सोच का की तरफ इशारा करता है। इसको ठीक करना चाहिए। दूसरा कि बजट जो आया है, 2-3 लाइन में ही कह दूं केवल, बजट तो 35 मिनट का उनका भाषण है, 35 सेकंड में उसको समअप कर सकता हूं। नंबर 1 कि मोदी साहब के कार्यकाल के दौरान 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनेगी, ये खुद बजट में स्वीकार कर लिया गया है। किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। एमएसपी के लिए जो आवंटन है वो उसमें कम पैसे रखे गए हैं। मनरेगा में कम पैसे, मनरेगा का बजट घटाया गया है। रोजगार, सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, उसके लिए कोई फौरी काम नहीं हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनेगा 2 साल बाद, 2 साल तक तमाम लोग जो है वो आत्महत्याएं कर लेंगे। जिसके पास आज खाने को नहीं वो कल क्या करेगा। कोविड के दौरान मनरेगा एक उम्मीद की किरण थी, तमाम लोगों को जीवन दान दिया मनरेगा ने, उसमें भी पैसा आपने कम कर दिया। और बिल्कुल आखिर बात मैं बता दूं कि 7 मार्च को आखिरी दिन है पोलिंग का। 8 मार्च की सुबह पेट्रोल डीजल के दाम का इंतजार करेंगे हम सब, क्योंकि उसकी सब्सिडी में 6,500 करोड़ रुपए कम किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं और ये कई महीनों की, मतलब पिछले कई साल का पीक रेट इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वहां $90 तक तेल चला गया है, क्रूड ऑयल। तो नहीं बढ़ रहे हैं अभी, वो 8 तारीख की सुबह नए दाम का इंतजार हम लोग करेंगे। राजीव जी, बिल्कुल महंगाई बढ़ेगी, ये साफ है। फटाफट दो हमारे साथी, अमलेंदु जी क्या कहेंगे जब सम्मान की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये सम्मान कहां खो गया है? देखिए राजीव जी, एक तो निर्मला सीतारमण को आप लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। उन बिचारियों का ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। उन्होंने जो हमला किया दरअसल वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला किया था उन्होंने। क्योंकि दीपक जी बता रहे थे कि वो जो एक कोई आया है और नियाज सिंह राठौड़ का गाना कि यूपी में काबा, उसके जवाब में एक और जो है वो चारण कोई गायिका है, उन्होंने कहा है यूपी में बाबा, कोई जैन अंबर टाइप की कुछ नाम है, तो उनका यूपी में बाबा। मतलब नियाज सिंह ने पूछे यूपी में काबा, तो उनका यूपी में बाबा, तो जवाब तो आ गया यूपी में बाबा।
तो निर्मला जो कह रही है यूपी टाइप, तो यूपी में बाबा बता रही है निर्मला सीतारमण। तो इसको आप लोग उसी तरीके से लीजिए, यानी वो हमला जो है वो योगी आदित्यनाथ की रही है, वो किसी और के ऊपर हमला नहीं कर रही है। हालांकि अगर योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी हमला कर रही हैं तो भी उत्तर प्रदेश का अपमान है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर इस तरीके का हमला जो है निर्मला सीतारमण को नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर उनको माफी मांगनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश का अपमान है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है इसका जवाब निश्चित तौर पर देगी। और भारतीय जनता पार्टी के खून में उत्तर प्रदेश का जो है अपमान करना राजीव जी शामिल है। इन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश का अपमान किया है और इसलिए चूंकि उत्तर प्रदेश ने इनको कभी कामयाब नहीं होने दिया था, अब ये आकर के थोड़े से कामयाब हुए, लेकिन इनको उत्तर प्रदेश इनको चूंकि नकारता रहा आजादी की बात से लगातार और इनके किसी भी दुष्चक्र को उसने कामयाब नहीं होने दिया, इसलिए उत्तर प्रदेश को लेकर के इनके मन में बहुत गहरी घृणा है। और ये प्रधानमंत्री की भी जो भाषण होते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के और जो संबोधन होते हैं उसमें बार बार झलकती है उत्तर प्रदेश को लेकर के घृणा। तो ये सब मिलाकर के जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो इसका ठीक ठाक जवाब जो 10 मार्च को जब खोलेंगी ईवीएम मशीनें उनसे निश्चित तौर पर देगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का अपमान करके और आप ऐसे निकल जाएं तो उत्तर प्रदेश का आदमी इतना कमजोर भी नहीं है जितना कि समझ लिया है गुजरात एंड कंपनी ने कि उत्तर प्रदेश का आदमी इतना कमजोर है कि ये अपमान करके उत्तर प्रदेश का निकल जाएंगे और उत्तर प्रदेश का आवाम का जवाब नहीं देगा। मुझको लगता है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का आवाम देगा। अब जहां तक ये है कि भाषा क्यों बिगड़ रही है योगी जी की या जयंत जी की, मुझे लगता है कि शायद अनिल जी ने भी कहा कि योगी जी की भाषा थी, उसके जवाब में जयंत जी की भाषा थी। हालांकि मैं भी अनिल जी की बात से सहमत हूं कि योगी जी की भाषा के जवाब में भी जयंत जी की भाषा जो थी वो बिगड़ी थी, लेकिन जो उन्होंने जिस तुर्की में तुर्की जवाब दिया उससे मुझे लगता है कि वो ठंडक वाली बात जो वो थोड़ी कुछ वो ठीक लग रही है। हो सकता है सर्दी ज्यादा हो रही है और बता भी रहे हैं अपने अनिल जी की वहां मुजफ्फरनगर में माइनस टेम्परेचर पहुंच गया है। तो अब शायद ये भाषण भी जो योगी जी का है वो मुजफ्फरनगर के आसपास में कहीं का है, तो माइनस जो है ठंड लग रही होगी। और इधर गर्मी भी जो है वो दिमाग में बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की बहुत चल रही है। कौन कह रहा था, जो शायद मायावती ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के गर्मी चढ़ गई है जनता के पैसे की, तो ये उसका भी असर हो सकता है। बहर कुल मिला के चुनाव आते जाते रहते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो ये छोटी मोटी बातें चुनाव में भी होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री भी स्वयं इस बात का ध्यान रखें और अपने जो उनके छोटे मोटे लोग हैं तो छोटी मोटी बातें करते रहते हैं उनको भी समझाते हैं कि चुनाव में भी ये छोटी मोटी बातें जो है और बिलो द बेल्ट जाकर के प्रहार नहीं होने चाहिए। और इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां, इस तरह की अपमानजनक भाषा और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, कुल मिलाकर अगर इनके द्वारा कोई गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा या गलत टिप्पणियां की जाएंगी तो उससे प्रदेश की देश की छवि जो है पूरी दुनिया में खराब होती है। देखिए दुनिया खुली हुई है, सोशल मीडिया की वजह से दुनिया खुली हुई है। प्रधानमंत्री के भी जो सुना जाता है कि कई करोड़ जो है कुछ फॉलोअर हैं उसमें बाहर के लोग भी, और प्रधानमंत्री के भी जो है ट्वीट जो है वो पीएमओ भी जो है वो रीट्वीट करता है, उनके भाषण करता है, प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल भी करता है। इस तरीके से योगी जी क्या भाई ट्विटर हैंडल है, वहां से भी जब वीडियो वो सब होते हैं तो दूसरी दुनिया के लोग जब सबको सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि भारत में क्या इसी तरीके की राजनीति होती है। मुझे लगता है कि इसको उत्तर प्रदेश और सबसे हट करके भारत के अपमान के ऊपर की भाषा को देखा जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि फिर आगे चर्चा बिल्कुल अमलेंदु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन भाषा की मर्यादा और जब उसकी बात करें तो मर्यादा और उसके साथ साथ जयशंकर जी क्रिया की प्रतिक्रिया या राजनीति में अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे चले जाएंगे। और कई बार कांग्रेस के लिए ये बात कही जा रही है कि जब राहुल गांधी को उस पिच पर आना चाहिए जिस पिच पर नरेंद्र मोदी खेलते हैं या बीजेपी खेलती है, तो बहुत कुछ है यहां पर। और इसमें क्या लगता है कि जो जयंत चौधरी की भाषा जो प्रतिक्रिया है, अगर कहें तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये भी टारगेट करके योगी आदित्यनाथ भी दो लड़कों की बात, एक लखनऊ वाला दूसरा दिल्ली वाला, जो टारगेट करके कह रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया, क्या यहां वैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? और दूसरी बात कि क्या राजनीति में ये सब जायज है? राजीव जी, जितनी बातें हम लोग सुन रहे हैं, वीडियो फुटेज में आपने सुनाई, सब दिखाई, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हमारा चुनाव आयोग इन बातों को नहीं सुन पा रहा है। उसके पास ये सब वीडियो फुटेज नहीं जाते हैं। अगर जाते तो उसको नोटिस जारी करना चाहिए था कि भाई इस तरह की भावनाएं भड़काने वाली बातें, अपमानजनक बातें, किसी के बारे में भी शत्रुतापूर्ण बातें
नहीं की जा सकती है, नहीं की जानी चाहिए। जिस ढंग से आदित्यनाथ जी बोल रहे थे उनके बारे में, अखिलेश यादव के बारे में, लखनऊ वाला बउआ वहां बैठ करके कर रहा था और दिल्ली वाला ये कर रहा था, लोग दंगाइयों को एक तरह से जैसे उसके साथ सिनानी मिट्टी कर रहे थे, जोड़ने की बात कर रहे थे। वो बहुत ही मतलब डिफेमेटरी तो है ही है, डेरोगेटिव भी है, मतलब वो उस पर तो केस भी हो सकता है। ऐसे ही नहीं हो सकते राजनीति में, मतलब थोड़ी सी मर्यादा तो रहनी चाहिए। खास तौर से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो हैं अब भूल जाते हैं कि आप एक लंपट नहीं हैं। आप किसी एक गेरुआ रंग धारण कर लिया तो आप महात्मा हो गए, कतई नहीं हो गए। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शुरू करना चाहता हूं निर्मला जी की बात से। निर्मला जी ने जो कहा वो तो अद्भुत है। मतलब हमने सुना है ना कि वो काबुल में भी मिलते हैं, तो जेएनयू में भी निर्मला सीतारमण मिलती हैं, यही हम कह सकते हैं। पंकज चौधरी जो हैं महाराजगंज से सांसद हैं, राहत रूह तेल बेचते हैं वो। उनकी नेपाली नागरिकता को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हुआ था। हमारे मित्र हर्षवर्धन जब सांसद हुआ करते थे, उनसे जब चुनाव आए थे तो उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा किया था इस बात की जांच करने के लिए कि वो नेपाली नागरिक है कि भारतीय नागरिक है। तो पहली बात तो उनकी नागरिकता का पता नहीं अभी कोई फैसला हुआ कि नहीं हुआ, एक बात हो सकती है। लेकिन जो जवाब पंकज चौधरी ने दिया था वो एक राजनीतिक जवाब था, उसमें हमको कुछ गलत नहीं लगता है। एक राजनीतिक है, ठीक है, कह सकते हैं कि भाई राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया होगा, ये अपनी अपनी समझदारी हो सकती है। लेकिन इसमें यूपी टाइप कहां से आ गया, ये निर्मला सीतारमण जी साफ करना चाहिए। मैं ये कहना कि बजट समझ में नहीं आया, आपने कह दिया कि यूपी टाइप समझा दिया है और उनको समझा दिया है जो यूपी छोड़ करके भाग गए। भाई आपके प्रधानमंत्री गुजरात छोड़ के दिल्ली बनारस क्यों आ गए? लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली छोड़ करके गुजरात क्यों चले गए? अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर और आगरा का बटेश्वर छोड़ करके लखनऊ क्यों चले गए? तो जरा सी भी समझ नहीं है। पढ़ाई लिखाई से रिश्ता ही नहीं है कोई भी। राजनीति के बारे में जरा से आपको कुछ पता नहीं है। आप किसी के रहमो करम पे आकर के आप बैठ गई, सांसद बन गई और वित्त मंत्री जैसे पद पे बैठ गई। पूरे बजट में पिछले 7 सालों से जब से बजट आ रहा है, मध्यम वर्ग को, नौकरी पेशा वर्ग को हर साल उन लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कि इस बार शायद लगता है कि कुछ इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। कोविड से सब लोग परेशान हो रहे हैं, सारे लोगों के बिजनेस व्यापार चौपट हो रहा है, सीनियर सिटीजन तबाह हो रहे हैं, उनके ऊपर आपने इतनी तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। सब लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, लेकिन आपको चिंता किसकी सताई? आपको हीरा उद्योग की, हीरे पे आपने सब्सिडी कराई, हीरे के टैक्स में कमी कराई। क्यों? क्योंकि सूरत का डायमंड उद्योग है, गुजरात का डायमंड उद्योग है, गुजरात में इस साल चुनाव होने वाला है। इसका मतलब कि निर्मला सीतारमण जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है आदित्यनाथ को पसंद नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कोई छूट नहीं दिया, लेकिन गुजरात और सूरत के हीरा व्यापारियों के लिए आपने छूट की, उसमें घोषणा की। तो एक तो ये बात है, और दूसरा जैसे जिस ढंग से अपमानजनक भाषा बोलते हैं, अहंकार जैसे दिखाई देता है कि मतलब अब जो मिल गया उसके आगे कुछ है नहीं, हम ही है बस दुनिया भर में, हमारे आगे कुछ भी नहीं है। तो ये बात तो ठीक कह रहा है, हमारे सारे मित्रों ने कही है। इसका जवाब जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो देगी 10 मार्च को कि यूपी टाइप जवाब क्या होता है। तो यूपी टाइप का जवाब इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलने जा रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा अभी आदित्यनाथ जी के बारे में जो भाषा बोल रहे थे कि साहब गर्मी शांत कर दूंगा, मैं तो मई जून में भी शिमला बना दूंगा। भाई शिमला बना दीजिए तो बहुत अच्छी बात है यार, सेब का बागान लगवा दीजिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कुछ लोगों के वहां रोजगार मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर के लोगों को वहां, यहाँ से हम लोग जाएंगे, सेब खरीदेंगे, खाएंगे, थोड़ा सस्ता हम लोगों को भी मिल जाया करेगा, वहां के बेरोजगार लोगों का काम मिल जाएगा। लेकिन आप जो भाषा बोल रहे हैं गर्मी शांत कर दूंगा, यार तुम्हारी गर्मी तो हमने बाबा देखी थी ना लोकसभा में, जब मिमिया रहे थे, रो रहे थे तुम, क्योंकि ये तुम्हारी गर्मी नहीं है, तुम्हारी सरकार की गर्मी है। सरकार अगर रहती है साथ में तो सब लोग पहलवान हो जाते हैं। इसलिए वो सब बातें छोड़िए, आपका हम सब जानते हैं कितनी गर्मी, किसकी चर्बी कितनी होती है। जयंत चौधरी ने गलत नहीं कहा। देखिए जयंत चौधरी यही तो कह रहे थे ना कि भाई हमारे इलाके में तो ठंड पड़ती है, लेकिन हम लोग ठंड में रहने वाले आदमी हैं। अजीत सिंह तो साल ये स्वेटर भी नहीं पहनते थे, कोट भी नहीं पहनते थे, तो वो उसको समझा रहे थे कि भाई ठीक, यहाँ के लोगों के खून में गर्मी है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जरा सा भी सोचने वाली बात है कि जिस ढंग से आप मतलब माफिया है और रेंग रहे हैं तो अब चल नहीं पाएंगे और ये नहीं कर पाएंगे। भाई बहुत सही अनिल जी बता रहे थे ना, वही बात हमने भी नोट करी थी। धनंजय सिंह हैं, ब्रजेश सिंह हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं,
संगीत सोम जी हैं, उनका जो सबसे बड़ा बीट ये सौदागरों में उनका नाम भी जो बार बार आता है, आपकी की पार्टी के विधायक है, पता नहीं मंत्री भी है कि नहीं है, मालूम नहीं। ये सारे लोग हैं ना, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई भाई? और कानून व्यवस्था बार बार कही जाती है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है भाई। अनिल जी आपको बताऊं, आपके बगल का एक किस्सा है, हाथरस की बेटी को जिस तरह से रात को 12 बजे जलाया था ना, अभी आजकल में एक घटना सुनने में आई है कि बुलंदशहर में भी ठीक वैसे ही घटना हुई। एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, फिर हत्या हुई, और रात को 12 बजे पुलिस वालों ने बिना पोस्टमार्टम कराए, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग न करने पाए घर वाले, जबरदस्ती उसकी लाश को जला दिया। ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। शर्म नहीं आती है जिस ढंग से बातें करते हुए? क्योंकि आप सरकार में आ गए तो आप लगता है कि पूरा भारत आपका जर खरीद हो गया। और राहुल गांधी बहुत सही बात कर रहे थे, जो था अमित शाह जी के बारे में अभी प्रशांत भी बता रहे थे कि जगत प्रकाश नड्डा जाते हैं या और कौन जाता है, वो भी अपना चप्पल जूता उतार के जाते हैं। भाई वो आपके रहमो करम पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं नड्डा जी, तो मोदी जी और अमित शाह जी के रहमो पे, लेकिन मणिपुर के लोग आपके रहमो करम पे नहीं रहेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की भावना बढ़ने शुरू हो जाएगी कि दिल्ली हमको हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट करती है, ये बहुत गलत होगा, इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा। इतना तो सोचना ही होगा ना। आप अपने तो खुदा समझने बैठे हैं क्या? प्रधानमंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो लगता है कि बस आपका राजपाट सब कुछ आप ही का हो गया। ये डेमोक्रेसी है भाई। डेमोक्रेसी में सरकारें बदलती रहती है और लड़ती पड़ती रहती है। आज कोई अर्श से फर्श पे कब आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो मुख्य रूप से बात यही है, आपको ये ध्यान रखने की बात है। आप सही बात है कि आप अपना बताइए 5 सालों में आपने क्या उपलब्धियां रही हैं, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या दिया है। आप बार बार कह देते हैं गन्ना किसानों का भुगतान हमने करवाया। भाई गन्ना किसानों का भुगतान अगर कराया होता तो गन्ना विकास राज्य मंत्री है सुरेश राणा, उनको दौड़ा लिया गांव के किसानों ने कि भाई हमारा तो गन्ने का भुगतान हुआ नहीं। ऐसा कैसे किसान बोलेंगे? जिसको लाभ मिलने की बात कर रहे हैं वही कह रहा है कि नहीं हमको तो कोई भुगतान ही नहीं हुआ है। तो आप तो कम से कम ये बताइए, आप कहिए कि हाँ जी मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया ये बता दीजिए। आप उसको बताने में दिक्कत क्या होती है? आप बताइए कितनी यूनिवर्सिटी आपने खोली है, कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं। प्राइवेट वालों का नहीं, प्राइवेट को जमीन दे दिया कौड़ियों के मोल पर, प्राइवेट जाकर किसी ने अस्पताल खोल दिया, मेडिकल कॉलेज खोल दिया, वो सब नहीं। ये बताइए कि IIT कितना खुला है, मेडिकल इंस्टीट्यूट कितना खुला है, ये अपना यूनिवर्सिटीज कितनी खुली है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, किसानों को बिजली का दाम क्या है। आज आपने चुनाव के समय के 10 दिन पहले आपने आधी रेट कर दिया, उसके बाद रेट क्या होगा ये भी बता देते ना कि भाई चुनाव के बाद भी ये रेट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें हैं। कोरोना का मैनेजमेंट है, उसके बारे में आपको बताना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट बताना चाहिए कि हाँ साहब हम मुख्यमंत्री हैं, 4 साल 5 साल हमने ये वायदे किए थे, हमने ये काम किया है, पूरा किया है, और जो काम बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। अब ये ठोक देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, भाई अब माफिया सरगना तो आप खुद है, आपकी भाषा बताती है कि आप खुद ही माफिया सरगना है। और केसेस विड्रा आपने अपने ऊपर से कराया, आपके ऊपर जितने मुकदमे थे, क्रिमिनल मुकदमे थे, वो आपने वापस लिया। केशव मौर्य आपके उप मुख्यमंत्री हैं, इलाहाबाद में डॉक्टर की हत्या में उनका नाम उभर करके आया था, बहुत सारे मुकदमे उनके खिलाफ थे, वो सारे आपने विड्रा कर लिए। आपने स्वामी चिन्मयानंद जी थे महाराज, जिन पर शिष्या के साथ तेल मालिश और क्या क्या मालिश करवाने का आरोप था, व्यवसाय के आरोप लगे थे, उनके केसेज आपने विड्रा करा लिए। कुलदीप सेंगर अभी भी भाजपा में है कि नहीं है, जेल में होंगे शायद। ये सारे लोग क्या है भाई, ये माफिया है कि नहीं है, अपराधी है कि नहीं है। तो जब आप बोलते हैं, भाषण करते हैं, कहीं भी पब्लिक मंच पे जाते हैं, तो अगल बगल झांक के देख लेना चाहिए कि भाई हमारे पास भी वही लोग हैं कि नहीं बैठे। कि हिंदू माफिया और मुस्लिम माफिया अलग अलग होंगे क्या? माफिया तो माफिया है, आपको ये बताना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है कहते आप कि हाँ जी हमने अतीक अहमद का ढलवा दिया, हमने मुख्तार अहमद के ऊपर बुलडोजर चला दिया, हमने ब्रजेश सिंह की संपत्ति पे बुलडोजर चला दिया। क्रिकेट खेल रहे हैं अभी इस समय धनंजय सिंह जिनके ऊपर वारंट है, धनंजय सिंह का हमने ये करवा दिया, बुलडोजर चला दिया। अगर ये कहते आप तो हमारे जैसे लोग आपका गुणगान करते, प्रशस्ति करते। लेकिन आप तो एक आंख से नहीं 2 आंख से देख रहे हैं भाई। आपकी निगाह में एक माफिया है, दूसरा साफिया है, आपके साथ है वो साथिया है। तो साथिया और माफिया दोनों तो नहीं चल सकता है ना। इसलिए राजीव जी 10 मार्च को तय हो जाएगा किसकी भाषा कितनी मर्यादित है, कितनी अमर्यादित है, किसने उत्तर प्रदेश में 5 साल में क्या किया है, उसके पहले के 5 साल में किसने क्या किया है। जनता सब फैसला करती है, जनता को ही तय करना है कि गर्मी किसकी रहेगी, किसकी शांत हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि समय खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप लोग अनुमति दें तो
5-7 मिनट और लेना चाहूंगा, एक विजुअल दिखाना चाहूंगा, एक बाइट दिखाना चाहूंगा। आज शामली में जब अखिलेश और जैन थे तो अखिलेश यादव पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर या उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, और उसके बाद आप लोगों से मात्र एक मिनट लूंगा जिसमें आप लोगों की प्रतिक्रिया, उसके बाद आप लोगों को विदा करूंगा धन्यवाद के साथ। लेकिन उससे पहले इस बाइट को अगर आप लोग अनुमति है आप लोगों की, चलिए फटाफट अखिलेश यादव की उस बाइट को सुनाइए जो आज शामली में वो पत्रकारों से बात कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद कर सकते हो? मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा कि नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूं, पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं कर दी उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं, कभी मुख्यमंत्री से पूछेगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। तो अनिल जी, ये अखिलेश यादव और जो बात रख रहे हैं बिल्कुल सधी हुई बातें मैं सुन रहा था बहुत गौर से, इसलिए सुनाना यहाँ जरूरी था। जब हम लोग भाषा की मर्यादा, थोड़ा जयंत चौधरी की बात भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन इन सब से उलट अखिलेश यादव अपनी बात भी रख रहे हैं और उसकी मर्यादा को लांघ भी नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल, क्योंकि बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है मुजफ्फरनगर से शामली, और मैं अभी जब शामली जिले के कैराना में था तो जब मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था 2013 का, आप उस दिन जिक्र कर भी रहे थे, तो वहां से जो लोग पलायन किए थे या वहां से जो लोग भागे थे, खासकर अल्पसंख्यक, वो नाहिद कॉलोनी में रहते हैं। नाहिद कॉलोनी हम लोग गए थे और वहां हम लोगों ने उन लोगों से बातचीत की थी और उन लोगों रो करके भी वो लोग कह रहे थे कि आज तक कोई मीडिया वाला नहीं आता है हम लोगों की खैर खबर लेने के लिए, क्योंकि हम लोग वहां से दंगा पीड़ित हैं, भगाए गए हैं और यहाँ ना उधर के रहे ना इधर के रहे। ये एक दूसरी बात है जो सामने मैं रखना चाह रहा था, लेकिन बात यहाँ पर अखिलेश यादव की, और वो भी शामली से जो पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किस रूप में आप लेते हैं? राजीव जी, अखिलेश जी ने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, मुख्यमंत्री जी कह के संबोधित कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी से लड़के कह के संबोधित करते हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, एक गरिमा उनकी। लेकिन अखिलेश जी के बयान में हमने बहुत गंभीरता से अभी सुना कि वो जी कह के बार बार मुख्यमंत्री जी कह के बात करते हैं। यही आचरण मुख्यमंत्री जी को भी अपनाना चाहिए। मैं अभी अमलेंदु जी की और प्रशांत जी की बात भी जोड़ना चाहूंगा। अमलेंदु जी ने कहा कि उन सीतारमन जी ने योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा। योगी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। योगी जी के बारे में भी यदि ये कहा जाता है सीतारमन जी द्वारा कि वो उत्तर प्रदेश टाइप है, तो हम इसकी भी निंदा करते हैं। हम हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और मुख्यमंत्री के बारे में भी इस तरह की बात कोई बाहर का आदमी कहे, चाहे वो देश का वित्त मंत्री भी हो, ये अक्षम्य है, हमारे उत्तर प्रदेश का अपमान है। वो मुख्यमंत्री है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रशांत भाई ने कहा कि अभी योगी जी का भी फिक्स नहीं है कि वो भाजपा की सरकार यदि बनी भी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। ये बात सामान्य रूप से चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी में एक वर्ग ऐसा है जो योगी जी को धूमल जी बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। गोरखपुर में डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल और उपेंद्र शुक्ला जी की धर्मपत्नी को जो कैंडिडेट बनाया गया है,
वहां जो निषाद या वहां जो ब्राह्मण समाज के लोग हरिशंकर तिवारी वगैरह हैं, हो सकता है महाराज जी को वहां घेर कर हटवा दें। इसकी संभावनाएं बहुत है। भाजपा में एक बड़ा ग्रुप है जो महाराज जी को नहीं चाहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव की सत्यता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रति, पुलिस की गुंडागर्दी के प्रति, प्रशासनिक अव्यवस्था के प्रति, बढ़ती महंगाई के प्रति, युवाओं पे लाठीचार्ज के खिलाफ जो जन आक्रोश है, वो यदि कहीं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है तो एक परसेप्शन के कारण टिकी हुई है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा है। केवल एक पॉइंट ऐसा है जो भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी को कवर कर रहा है। बाकी भारत, अगर इसको माइनस कर लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान स्थिति में बहुत बुरी स्थिति में थी, चुनाव में मुकाबले में है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हरी जाने, 10 तारीख को पता लगेगा, जनता निर्णय करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी नेताओं से बड़ा चेहरा है। यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं, जिसकी भी संभावनाएं राजनीतिक क्षेत्रों में लग रही है कि योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे अगर भाजपा की सरकार आई तो ये उत्तर प्रदेश के उन करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो वोट भाजपा को नहीं दे रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। हमारी टीम जब क्षेत्र में राजीव भाई जा रही है, पूछती है तो वो कहते हैं नाराजगी है, सब कुछ है, विधायक बेकार है, आया नहीं 5 साल, सब कुछ, लेकिन वोट कमल को। क्यों? कमल को योगी आदित्यनाथ के उस परसेप्शन को वोट मिल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। इसके अलावा कोई अन्य मुद्दा नहीं जिसकी वजह से भाजपा वोट पा रही है, चुनावी मुकाबले में है। दीपक जी, क्या कानून व्यवस्था के नाम पर कई चुनाव ऐसे भी पहले भी लड़े गए, जो बहुत सही बात अनिल रॉयल जी कह रहे हैं कि भाजपा के सामने सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे मुद्दा भाजपा बना रही है और वही है, उसी परसेप्शन को आगे बढ़ा भी रही है। आपको क्या लगता है, कानून व्यवस्था और सिर्फ जहां बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारी चीजें हैं, कोरोना काल की अव्यवस्था, तमाम चीजों के बीच में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर सर्वोपरि रहेगा चुनाव के दौरान? और जैसे धरातल पर गांव-गांव अलग-अलग जगहों पे जैसा अनिल जी बता भी रहे हैं कि लोग जा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ की बात तो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां मैं बात पूछ रहा हूं कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था क्या एक मुद्दा और बहुत ही गंभीर मुद्दा बन सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था वाला जो मामला है ये एक पर्दे की आड़ है। उसके आड़ में भी कुल उनका जो एम है, जो उनका जो उद्देश्य है, प्रयोजन है, वो ध्रुवीकरण ही है, सामाजिक ध्रुवीकरण ही है। जैसा कि जयशंकर जी ने कहा कि मुस्लिम माफिया और हिंदू माफिया, इसमें कोई फर्क नहीं होता, माफिया माफिया होता है। लेकिन ये डिवीजन हमने बहुत जगह देखा है। बंबई में पत्रकारिता करने के दौरान मैं देखता था कि शिवसेना जब राइज कर रहे थे तो शिवसेना ये बताती थी कि मुस्लिम ये माफिया है, वो माफिया है, इसका नाम, उसका नाम, दाऊद का नाम, ये नाम। लेकिन उनके अपने भी जैसे अरुण गौली है या दूसरे जो माफिया हैं उनको वो प्रमोट करती थी। सत्ता जो है उसे इससे कोई मतलब नहीं है। और खासकर योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति कानून व्यवस्था को इसलिए मुद्दा नहीं बना सकते क्योंकि वे स्वयं घिरे हुए हैं, उनके अपने अपराध कोई कम नहीं है। तो ये जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो केवल इसके लिए कर रहे हैं कि वो ध्रुवीकरण ही कर सके, जो दूर से बैठकर मैं समझती। प्रशांत जी क्या कहेंगे कानून व्यवस्था पे? और खासकर एक सवाल यहां और भी कि जब एक तरफ सीएम को अखिलेश यादव सीएम साहब या योगी जी कह रहे हैं, दूसरी तरफ जबकि आप देखिए दोनों की उम्र लगभग बराबर है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है जैसा अनिल जी कह भी रहे हैं और दूसरे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दोनों की भाषा दो ध्रुव है बिल्कुल। एक जो है वो थोड़ा सा मर्यादा का पालन कर रहे हैं, दूसरा जो है बिल्कुल मर्यादा से बाहर। देखिए राजीव जी, अगर पृष्ठभूमि किसी की कुछ भी हो, कानून और संहिता, आचार संहिता आपको मर्यादित भाषा बोलने के लिए मजबूर करती है। ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि इलेक्शन कमीशन के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वरना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उठा के देख लीजिए, उसकी तीसरी या चौथा जो अनुच्छेद है उसी में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट एक दूसरे को नीतियों के आधार पर आलोचना करेंगे, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाएंगे।
ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शुरुआत में, आचार संहिता की शुरुआत में है। तो अब आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप मतलब कोई किसी आपराधिक बैकग्राउंड से भी अगर आते हैं तो अपराधियों की भाषा आप नहीं बोलेंगे, आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, देखिए कानून व्यवस्था का न आंकड़ों से कोई जस्टिफिकेशन है। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, दलितों के खिलाफ हिंसा में उत्तर प्रदेश सारे भारत में सबसे आगे, और कितना आगे कि कुल भारत के 25% क्राइम अगेंस्ट SC/ST उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। यानी हर चौथा व्यक्ति जो है, हर चौथा अपराध दलितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हो रहा है देश में। तो इसको तो जो भुक्तभोगी है वो जानता है ना। नारे के रूप में आप कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो भुक्तभोगी वो जानता है ना कि कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हुई है, कितनी खराब हुई है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हाँ, अखिलेश ने मर्यादा रखी है, और योगी जी को आचार संहिता उनको कोई पढ़ाए, अगर वो पढ़ सकते हो तो, कि इलेक्शन की आचार संहिता क्या कहती है। और अगर कानून संविधान सबसे ऊपर है, ऊपर रहना है, तो भाई वहीं जाए जहां इनको बीजेपी ने भेजा है। कहना चाह रहे, जोड़ना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं राजीव जी, कानून व्यवस्था बेहतर है या नहीं है, एनसीआरबी के डाटा अलग विषय बहस का है, लेकिन जो परसेप्शन है, मैं कह रहा हूं भाजपा परसेप्शन बनाने में सफल है। भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी को रिकवर कर रहा है केवल एक मुद्दा, इसके अलावा कोई एक मुद्दा ऐसा नहीं है जिसकी वजह से भाजपा के चुनाव में भी है। अगर इसको माइनस कर दो, भाजपा क्लीन स्वीप साफ है। मैं ये कह रहा हूं केवल एक परसेप्शन बनाने में। एनसीआरबी के डाटा में हाथरस की बेटी की बात हो, बुलंदशहर की बेटी की बात हो, या अन्य अपराध हो, उसको मैं मना ही नहीं कर रहा हूं। अपराध है, अपराध में कोई मूलभूत अंतर नहीं आया है, पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है, थानों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अफसरों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन एक परसेप्शन कानून को लेकर बना है, लॉ एंड ऑर्डर को बना है, जो भाजपा के लिए एक राहत की चीज है। मेरा कहना केवल यह है प्रशांत जी। जी जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, कानून व्यवस्था क्या अब भाजपा की नैया पार लगाने के लिए काफी है? नहीं राजीव जी, मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि नैया पार लगाने के लिए काफी है, क्योंकि हालांकि कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा है। जैसे 2017 में भी जो भारतीय जनता पार्टी आई तो वो कानून व्यवस्था का मुद्दा बना करके आई। 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो भी उस समय भी कानून व्यवस्था का मुद्दा जो था वो था। और मुझे याद पड़ता है शायद अमर सिंह के लिए कुछ कह दिया था मायावती ने, तो वो कुछ बड़ा मुद्दा बना था। तो इस तरीके की चीजें मुद्दा बनती हैं कानून व्यवस्था का। लेकिन सवाल ये है कि जो विपक्ष है वो असल में भाजपा के परसेप्शन की काट किस तरीके से करता है, मामला इस पे है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जो सही मामलों की शुरुआत की थी वो धीरे धीरे पटरी से उतर ले, वो जाके फंस जाते हैं। भाई आपको इतना समय जो टीवी स्टूडियो में जाके बर्बाद करते हैं, उसमें बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी फलाने कौन कौन जो उनको जाकर के टाइम बर्बाद करते हैं और वहां बहस करते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने वर्कर को और आप जनता को आप संबोधित कीजिए, वहां आप जाके बात कीजिए, इनकी पोल खोली से जाके। जैसे अखिलेश यादव ने मुद्दे की बात उठाई, शुरुआत कहां से की कि कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसके अगले दिन ईडी पहुंच गई शिखर वालों के यहां। तो यानी मुद्दा है, तो ये बात हो गई। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को और प्रशांत जयंत चौधरी, इनको भी जो है मुद्दों पे टिके रहना चाहिए। बिल्कुल जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे जो हैं, कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका अगर उल्टा फायदा ले रही है तो भारत पार्टी की कामयाबी नहीं, विफलता है विपक्ष की। यानी आप जिस मसले में घेर सकते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं, यानी सरकार कहते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े गलत हैं और राज्य सरकार के आंकड़े अलग हैं, ये भी हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर तमाशा। तो एनसीआरबी के आंकड़े जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है केंद्र है, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। तो ये तो जो है मतलब जो कंट्राडिक्शंस जो हैं दोनों सरकारों के बीच में, उनको लेकर के विपक्ष को सामने आना चाहिए। मैं फिर ये कहूंगा कि टीवी स्टूडियो में समय बर्बाद करने के अलावा, क्योंकि आप वहां कितना भी समय बर्बाद कर लीजिए, आप वाली 30 मिनट के लिए वहां चले भी जाते हैं, तो बाकी जो 23.5 घंटा है वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार कर रहा है वो टीवी। आपके लिए वहां क्या वहां जाके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जनता के बीच जाइए। जी राजीव जी।
जी, बहुत सारी बातें, लेकिन सबकी बात आप सुन रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। जयशंकर जी, क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? नहीं, देखिए कानून व्यवस्था बात सही है, अमरिंदर की बात से हम सहमत हैं। विपक्ष ने कभी इसको इशू बनाया नहीं, कायदे से उसको इशू बनाना चाहिए था। और जैसा अनिल बता रहे थे ना कि एनसीआर भी कुछ भी कहे, लेकिन एक परसेप्शन है। परसेप्शन कौन बनाता है? परसेप्शन मीडिया ने बनाया। कौन मीडिया? जो विज्ञापन पर जी रहा है, जो सरकार के विज्ञापन पे जी रहा है, जो भाजपा के विज्ञापनों पे जी रहा है, वो मीडिया उसने परसेप्शन बनाया है। भाई अगर विपक्ष का काम ये होता है, ये कहती कि भाई आप अपने पोस्टरों में, अपने जो भी आपका विज्ञापन है उसमें बताते कि एनसीआरबी जो केंद्र सरकार का ये है, डाटा विंग है, उसके आंकड़े बताते हैं कि दलितों के खिलाफ कितने अत्याचार की घटनाएं हुई, महिलाओं के खिलाफ कितने अत्याचार की घटनाएं हुई, कितने अपहरण के मामले हुए, कितने दंगे हुए, कितने लोगों की हत्याएं हुई। अब कानपुर का व्यापारी जो है गोरखपुर में जाता है और उसको होटल में पुलिस वाले जाकर के पैसे मांगने के क्रम में उसकी हत्या कर देते हैं। ये मुख्यमंत्री के घर में हो रहा है, आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर में हो रहा है कि कानपुर का व्यापारी आशीष गुप्ता या कुछ इस तरह का नाम था उसका, उसकी हत्या गोरखपुर में होती है। जी, मनीष गुप्ता, ठीक है, मनीष गुप्ता, हाँ मनीष गुप्ता। तो उसकी हत्या तो वहां हो रही है। इस तरह की लगातार, मतलब हम तो दंग हैं। आप कभी अगर खोलिए अखबारों में तो बहुत की कम खबरें छपती हैं, लेकिन जो छन के छपती हैं, जो दिल्ली के अखबारों में मिलती हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब उत्तर प्रदेश के किसी न किसी कोने में किसी दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको जला दिया जाता है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अपहरण की घटनाएं भी हो रही हैं, हत्या की वारदातें हो रही हैं लगातार। ब्राह्मण समाज के लोगों को, कितने लोगों को मार डाला लोगों ने, किस तरह से। अब विकास दुबे क्रिमिनल था, माफिया था, पुलिस पे उसने हमला किया, पुलिस ने उसकी हत्या की, जैसे भी की, वो एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उसको कोई विकास दुबे की पैरवी नहीं कर सकता। लेकिन उसके घर में जो खुशी दुबे नाम की बच्ची है, जो शादी होकर के 3 दिन पहले ही इसकी शादी हुई थी, उसको आपने किस अपराध में ठोक दिया भाई? कैसे आपने जेल में भेज दिया उसको? इसके बारे में तो उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहेंगे ना, मीडिया के लोगों को बताना चाहिए। मीडिया नहीं बताता है तो विपक्ष के लोगों को बताना चाहिए कि भाई खुशी हो दुबे का क्या आरोप, किस अपराध के तौर पर उसको जेल में रखा गया है। इस तरह के भाई सूझ है। लेकिन देखिए सही बात यह है, आप कुछ भी बोलिए, गर्मी बोलिए, ठंड कर दीजिए, वो सब बोलिए, बात समझ में आती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग सब कुछ जानते हैं। भाई आपको योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री हो एक राज्य के, आपको ये याद आता है कि मुजफ्फरनगर के दंगों में 2 बच्चों की हत्या हुई जिसके नाम आप ले रहे थे, लेकिन वहां हत्या तो 45 करीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हुए थे, 23 या 25 कुछ जाट किसानों की भी हत्याएं हुई थी, दोनों तबके के लोग मारे गए थे। तो आप ये भी कहते हैं ना कि भाई दोनों समुदाय के लोग मरे थे, लेकिन आपको 2 बच्चों के नाम याद आ गए, बाकी लोगों का किसी का नाम नहीं याद आया। आप सीधे सीधे क्यों नहीं जाते भाई कि हम हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम हिंदू राज्य बनाएंगे, हमारे राज्य में हटा दीजिए, नागरिकता खत्म करवा दीजिए, आप संविधान में संशोधन करवाइए नरेंद्र मोदी से, कहिए कि संविधान में संशोधन कर दीजिए भाई, हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं रहेगा, कोई क्रिश्चियन नहीं रहेगा, कोई सिख नहीं रहेगा, कोई जैन कोई बौद्ध नहीं रहेगा, सब हिंदू रहेंगे। मजाक बना रखा है भाई लोकतंत्र जो है, संविधान का आप मखौल बढ़ा रहे हैं, लगातार मखौल बना रहे हो। हमारा चुनाव आयोग इस तरह की भाषाओं को सुन रहा है, देख रहा है, एक बार भी उसकी टिप्पणी नहीं आती है। तो लेकिन सीधी सी बात यह है कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। आप कितनी भी भाषण कर लीजिए, कैसे भी जहरीली बातें कर लीजिए, जनता सब समझती है। 10 मार्च को जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी, हालांकि मुझे संदेह हो रहा है, आज मैंने कहीं देखा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत सकती है। किस आधार पर कर रहे हैं, यह सोचने वाली बात हो सकती है। कहीं कोई जुगाड़ करके रखा है, कहीं कुछ इंतजाम इस तरह का है जिसकी भनक केसी राव को भी मिल गई हो, तो बात अलग है। लेकिन जैसा मैंने उस समय भी कहा था पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय में, कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सड़कों पर जो माहौल दिखाई दे रहा है, अगर उसको दुत्कार करके, नकार करके चुनाव आयोग और सरकार मिलकर के कोई खेल करके नतीजों को बदलने की कोशिश करती है, तो पश्चिम बंगाल की सड़कें लाल हो जाएंगी। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भी अगर इस तरह का कोई भी कुचक्र रचा गया तो उत्तर प्रदेश के लोग माफ नहीं करेंगे। इन्होंने 1857 का गदर देखा है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं,
इन्होंने बाकी रीजन के खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ी है। एक बार फिर ऐसा आ सकता है कि बागपत से लेकर बलिया तक लाल हो जाएगा। ये राजनीति जी, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ है इस चुनाव में, और बहुत सारी बातें जो होती हैं एक घंटे में कई बार संभव नहीं हो पाती हैं। आज जब कार्यक्रम की हमने शुरुआत की, राहुल गांधी और उनके बाद दिन भर मायावती आज पहली बार बाहर निकल के आई हैं, उन पर भी चर्चा जरूरी है। लेकिन अब चूंकि समय ऑलरेडी आधा घंटा से ज्यादा का वक्त अपने तमाम साथियों का ले चुका हूं, इसलिए कल जब चर्चा की शुरुआत करेंगे तो उनकी चर्चा भी करेंगे। इसलिए आज आप पांचों महानुभाव हमारे साथ जुड़े, आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रशांत जी, अनिल जी, अमलिंदु जी, दीपक जी और जयशंकर जी, आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं। दानिश शेख पूछ रहे हैं कि सर, वी आर हियरिंग रिपोर्ट्स दैट पोस्टल बैलेट विल प्ले अ मेजर रोल इन यूपी इलेक्शन दिस टाइम, कैन यू प्लीज टॉक अबाउट दिस? What should government employees and other political parties do to counter this? बिल्कुल इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इनके अलावा जावेद इकबाल जी बहुत आज शायराना मूड में हैं। कल भी एक शेर उन्होंने लिखा था लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन आज उनके 4 शेर जो हैं, 3 मैं देख रहा हूं। एक, बेरहम हो बिजलियां ये हवाई खिलाफ हो, कुछ भी हो हम अहतमोम गुलिस्तां हम करेंगे हम। इसके अलावा लिखते हैं जावेद इकबाल कि हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बहुत खूब लिखा है जावेद इकबाल भाई आपने। लेकिन दानिश जी जो सवाल कर रहे थे, इस सवाल का जवाब यहाँ बहुत जरूरी है देना, क्योंकि ये जो आप पूछ रहे हैं दानिश भाई, यही बात बार बार ये बिल्कुल सही है। और इस पर न सिर्फ जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, इनके अलावा जो अपोजिशन है उसमें चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे उसमें ओम प्रकाश राजभर हो जो अभी जुड़े हुए हैं अखिलेश यादव की पार्टी से, सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसके अलावा राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं, वो ये सब इस बात पर गौर फरमा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि जो बैलेट पेपर है उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और वो गड़बड़ी ये हो सकती है कि अभी से ही कई जगह ये खबर सुनने को मिल रही है कि कई लोगों के, कई कर्मचारियों के आधार माफ करें बैलेट, वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो मंगा लिया गया है, और उसके बाद अपने ढंग से जो उनके बॉसेस हैं, जो उनके जो स्टाफ, इनके जो हेड हैं, वो लोग जो हैं अपने हिसाब से शायद उसमें गुणा भाग करें, शायद अपने हिसाब से वोट दें, हो सकता है अपने जो कहा जाए उस सिंबल पर वोट दें और इसका फायदा बाद में लिया जाए। बिहार का चुनाव आप याद कीजिए कि बाद में एक बैलेट पेपर की गिनती हुई थी और उसमें आरजेडी के 20 कैंडिडेट ऐसे थे, लगभग 20 कैंडिडेट जो 2000 से कम के थे और वो हार गए। पहले उनको जीत उनकी घोषित हुई, बाद में वो हार गए। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ खेल होगा? लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए अगर उत्तर प्रदेश की जनता, और बहुत सारे साथी हमारे साथ जो जुड़ते हैं कहते हैं कि ये जो चुनाव है ये जनता लड़ रही है, जावेद इकबाल भी कहते हैं ये बात, और भी लोग, कई लोग कहते हैं कि ये जो चुनाव है जनता लड़ रही है, जनता वर्सेस बीजेपी यहां चुनाव हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये जनता को भी देखना होगा, और उसके अलावा जो पार्टियां जिस पर जनता भरोसा कर रही है, जो वोटर्स भरोसा कर रहे हैं जिन पार्टियों पे, उनको भी देखना चाहिए कि धांधली ना हो, गड़बड़ियां ना हो। तो दानिश भाई आपका सवाल बहुत सही है, बहुत सही सवाल, वाजिब सवाल आपने पूछा है कि क्या बैलेट पेपर जो है वो पोस्टल बैलेट पेपर, उसमें अगर कुछ खेल हो जाता है तो सच ये बिल्कुल सही बात है कि गड़बड़ी तो, और उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान ये अखिलेश यादव को देना चाहिए, ये ध्यान जयंत चौधरी को देना चाहिए, ये ध्यान प्रियंका गांधी को भी देना चाहिए और तमाम दूसरे दलों को भी देना चाहिए, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल है, जो सत्ता पर काबिज है, जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, वो ऐसा करते हैं कई बार। ये मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूं, कई जगह ऐसी चीजें देखने सुनने को मिली हैं, इसलिए भी जरूरी है। घनश्याम शर्मा जी कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को संयमित मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, चाहे
राजनीति में हो या व्यक्तिगत जीवन में, निर्मला, योगी, मोदी, अमित शाह, अखिलेश, जयंत, सबके ऊपर ये लागू है। बिल्कुल सही कह रहे हैं घनश्याम भाई आप। अफरोज आलम कह रहे हैं कि राजीव जी, बीजेपी के नेता हार की बौखलाहट में तानाशाहों वाली भाषा बोल रहे हैं। योगी की भाषा गुंडों वाली है। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने यूपी टाइप बोल करके हद पार कर दी है। यही बात, वही हम लिख भी रहे हैं कि यूपी टाइप सियासत में बीजेपी जो है फंस गई है, बिल्कुल फंसी हुई दिखाई दे रही है। और अफरोज आलम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही कामिल शेख भी हमारे साथ बने हुए हैं, एमआर रिजवी भी हमारे साथ बने हुए हैं, तेज प्रताप यादव भी बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि सारी स्वतंत्र संस्थाएं आंख मूंद कर बैठी हुई हैं और अमित शाह कोरोना गाइडेंस का पालन नहीं करते। योगी जी अमर्यादित बयान देते हैं। राष्ट्रपति शासन में चुनाव आयोग भी शांत बैठ कर देख रहा है क्या हो रहा है देश में। बिल्कुल सही। अशोक सक्सेना जी कह रहे हैं कि बहन जी को भी बाहर बुलाया जा रहा है क्योंकि सारे वोट बट जाएं। बिल्कुल आपकी बातों में दम है अशोक सक्सेना जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। एमआर रजवी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को अपने गुंडागर्दी पर इतना भरोसा है कि वो गुंडागर्दी करके यूपी के लोगों को बेवकूफ बना करके सत्ता हासिल कर लेगी। ऐसे मोहम्मद रब्बानी कह रहे हैं कि ये बैलेट पेपर को क्यों नहीं हटा देते हैं, गड़बड़ी की जाती है तो उसको हटा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो यही है कि ये गड़बड़ी करने वालों पर जब सवाल उठाया जा रहा है, जब आप बिल्कुल ही यहां लड़ना होगा जनता को, और जनता जब जागती है तो बहुत कुछ कर बैठती है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। जावेद इकबाल लिख रहे हैं कि सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सिर्फ बैलेट पेपर के सहारे बीजेपी यूपी जीत सकती है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है जावेद भाई, बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ बैलेट पेपर। लेकिन हाँ, आपको बताऊं, पोस्टल बैलेट पेपर जो है उसमें कई जगहों पे एक मतलब जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में दसियों हजार पोस्टल बैलेट हैं, और यहां तो 1000, 2000 और 500 और 200 से जीत और हार का फैसला हो जाता है। तो वो गड़बड़ी हो सकती है, इस पर तो ध्यान देना ही होगा। जैनुल अंसारी हैं हमारे साथ में, और ऐसे ही अफरोज आलम बने हुए हैं, वसीम अहमद बने हुए हैं हमारे साथ में, और बने हुए हैं हमारे साथ गुलाब सिंह, जो कह रहे हैं इनकी भाषा, देखिए ये भी एक अपनी भाषा की मर्यादा को रख रहे हैं यहाँ पर। जरा मैं सुना देता हूं आप सबके सामने। अबे चमचों, योगी ने गर्मी उतारने को बोल दिया, तुमको बहुत मिर्ची लग रही है। उधर जब नाहिद धमकी वाले बोल रहा है कि सपा सरकार आने दो फिर बताएंगे, तब कहां थे तुम लोग। लीजिए, ये है गुलाब सिंह जी की भाषा, वही भाषा बोल रहे हैं जिस भाषा पे हम पिछले 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इनकी भाषा है, इनके शब्दों को हमने यहां रखा है, इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। खैर, तो ऐसे ही बाख लाल गुप्ता भी हैं, ऐसे ही जो कह रहे हैं बीजेपी युवा विरोधी फिरोज खान भी हैं, और मोहम्मद अखलाक हैं जो कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री को जब पूरे देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे तो भाजपा का प्रचार क्यों करते हैं? अपना लोकसभा का प्रचार करना चाहिए, विधायकी का, नगरपालिका का तक प्रचार कहां तक उचित है? बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता है। भाई ये सवाल तो है, कई लोग बोलते हैं, पूछते हैं। रामपाल मीना भी हमारे साथ में, फिर गुप्ता जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, अफरोज आलम बने हुए हैं, और अजीजी कामिल फाउंडेशन भी हमारे फुंडन हैं जो कह रहे हैं कि मोदी अपने को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं क्योंकि उनका विकास के नाम पर कुछ नहीं उन्होंने किया है। और बादर आलम कह रहे हैं कि अगर एसपी हारेगी, नेम AIMIM का नाम बदनाम होगा। अगर समाजवादी पार्टी हारेगी तो AIMIM का नाम बदनाम होगा, ये कह रहे हैं। और ऐसे हरिओम जी कह रहे हैं कि वेरी नाइस, सभी दोस्तों को डीवी लाइव पर देखने वाले लोगों को गुड नाइट। राजीव जी आपको भी हरिओम भाई गुड नाइट। और ऐसे अब बहुत सारे साथी जो लगातार हमें देख रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, आप सबको
मैं भी आप सबसे विदा लेना चाहता हूं, क्योंकि बहुत वक्त ले लिया आज आप लोगों का। और चूंकि चर्चा ऐसी महत्वपूर्ण थी जिसमें बहुत सारी बातें थीं, राहुल गांधी से शुरुआत हमने की थी और निर्मला सीतारमण का बयान, उनके अलावा योगी आदित्यनाथ का बयान, अखिलेश यादव का बयान, जयंत चौधरी का बयान, बहुत सारे बयान, बहुत सारी बातें, और चुनाव का वक्त है तो ये सारी चीजें होंगी ही। और इन सब के बीच हमारी टीम जो है अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग जगहों पे आप जानते हैं ओपिनियन पोल भी इकट्ठा कर रहे हैं हम, और 7 तारीख की शाम को आपके सामने हम लेकर आएंगे ओपिनियन पोल। कल इसकी हम सूचना आपको देंगे कि कितने बजे हम आपके सामने ओपिनियन पोल लेकर आएंगे, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल 7 तारीख को आपके सामने, इसी 7 तारीख को, आज 2 फरवरी है, 7 फरवरी को हम आपके सामने 5 राज्यों का लेटेस्ट ओपिनियन पोल लेकर के आएंगे दोस्तों। तब तक आप सबसे अब विदा चाहिए। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, कुछ खबरों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ और कुछ पैनलिस्ट दोस्तों के साथ भी, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सबका इंतजार रहेगा। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।